What is up YouTube? यार आई थिंक फुटबॉल इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी, कैसे मैं इस चीज़ के बारे में बात ना करूँ मेरे को नहीं समझ में आता. एंड सो या जस्ट हियर बैक अगेन टू टॉक अबाउट what's happening in the world of football. Champions League quarterfinals, how Arsenal played, how Madrid played, how Bayern played, how Barca played, how Atletico played, what's going to happen in the semi-finals, how did I feel about the games, Arsenal bottling the league, City winning the league, etc, etc, etc. So just to start off, I do not watch football like it's my job, and I'm not going to do any tactical analysis in this video. I think there are much better people out there and much more talented people out there than me who can tactically analyze a game and present to you whatever their analysis. और भाई मैं तुमको सच बताऊं तो भाई I genuinely think कि भाई I don't know man. I mean मैं फुटबॉल बहुत टाइम से खेल रहा हूँ. Definitely I'm not a super crazy good player. I am a very average player, but भाई I think football is more of a feeling driven game than a tactical game की मतलब I mean I don't know. Again, I've not played at a pro level, so I don't know how these guys approach the situation. But मैं थोड़े दिन पहले रंजीत बजाज का भी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो उसका भी एक पॉइंट था. वो कह रहा था कि भाई ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे पास बॉल आ रही है एंड यू आर टेकिंग 1 2 3 seconds टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. इज जस्ट इंस्टिंक्ट and it's just muscle memory because you've been doing that since your childhood, so you just know what needs to be when you just know what needs to be done. तो मतलब हाँ भाई, when everything is dependent upon your instinct, everything is dependent upon muscle memory and what you've been doing all these years, तो मतलब वहाँ पे tactics कितना ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है. मतलब तुम थोड़ा फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, तुम थोड़ा सा you can try to confuse the opponent, you can try to पता नहीं यार, आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, बट माई टेक इज़ कि भाई फुटबॉल इज़ मोर ऑफ अ फीलिंग ड्रिवन गेम दैन अ टैक्टिक्स ड्रिवन गेम. आई कुड बी डेफिनेटली रॉन्ग व्हेन आई से दिस. somebody who understands tactics at a deep level can teach me a thing or two about this thing. But anyway, सबसे पहले तो भाई आर्सेनल की हम बात करते हैं यार. देयर इज समथिंग कॉल्ड having a killer instinct which this team lacks. You cannot trust Bukayo Saka, Trossard, Mikel Merino, Victor Gyökeres to win you the Premier League and the Champions League. यार मतलब ठीक है, मतलब एक प्रीमियर लीग वो लोग इस स्क्वाड के साथ जीत सकते हैं, बट वी आर entering into conversations where people are talking about whether Arsenal are the best team in the world and are they going to dominate world football in the coming years. Bhai, the answer is clearly no, because if we talk about all the best teams in world football in the last 15 years, there is one thing that you will find common in all these teams, and that is these guys had something called the killer instinct, the ability to be clinical, the ability to not make mistakes, the ability to have so much confidence in your game that if you get the space and if you get just a second more, then you'll score, you'll win the game for your team. तो मतलब I think that is what Arsenal lacks. एजा को ले लो भाई, माडुएके को ले लो, साका भाई, साका आई हेट साका. I mean, hate is a strong word, but I genuinely do not understand why people think Saka is a good player. He might have been a good player once, maybe 2 3 4 years back, but lately he's been shit, bro. And you cannot win the league. I'm so sorry, and you cannot win the Champions League with a bunch of players who are good, but none of these guys have a clinical ability. Even if one of these guys had a clinical ability, तो maybe chance था, but पता नहीं भाई. From what I have seen in this sport for all these years, from what I know about the sport, my gut tells me कि भाई Arsenal
genuinely and desperately need a clinical player in their attack. फिर काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आर्सेनल हैव गॉट द बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड. नॉट हियर टू आर्ग्यू अबाउट दैट पॉइंट. आई एम जस्ट गोइंग टू से कि आई डोंट नो इफ दे हैव गॉट द बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड. देखते हैं अभी. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि भाई एटलेटिको मैड्रिड के मैच को लोग कैसे अप्रोच करते हैं. एंड इफ एटलेटिको इज एबल टू स्कोर अगेंस्ट आर्सेनल एंड दे आर एबल टू बीट आर्सेनल, तो भाई मतलब इट हैज़ ऑल बिन अ फसाड. आर्सेनल was just able to be on top of the Premier League for all these months because City had a poor season. Guardiola के चेहरे पे तो दिखता है भाई that he's going through something. भाई I mean I don't know, I've got a sixth sense about this thing. I might be wrong, but it just looks like that man is going through something because सारे press conferences में he's just got that energy where he's just struggling in his personal life and he's not being able to process whatever is going on in his personal life. Not really sure what it is, but देखते. I'm really excited. Don't want Arsenal to lose. Kind of a small part of me wants Arsenal to win also, क्योंकि अच्छा लगता है भाई अंडरडॉग्स को जीतते हुए देख के. एंड इट्स ऑलवेज एन एंटरटेनमेंट भाई कि इतने साल से वो लोग जीते नहीं है, फाइनली जीतेंगे तो होगा ना. मतलब इट्स अ गुड स्टोरी टू विटनेस. फिर बॉटल भी करेंगे तो अगेन इट्स एंटरटेनमेंट. तो मतलब भाई बढ़िया चल रहा है अभी फुटबॉल की जगत में. बढ़िया चीज़ें चल रही हैं. ये हो गया, आर्सेनल पे हो गया. बायर्न और मैड्रिड के गेम में ना भाई फर्स्ट लेग की अगर मैं बात करूँ ना, एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि भाई ठीक है बायर्न में एवरीबडी इज़ प्रेजिंग डियाज, केन एंड ओलीसे, एंड आई विल ऑल्सो इन अ कपल ऑफ मिनट्स. बट भाई समथिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी इन द फर्स्ट लेग ऑफ बायर्न वर्सेस मैड्रिड वो ये था कि भाई Bayern have the ability to build from the back. And what I mean by that is कि भाई उनके डिफेंडर्स को सही जगह पास खेलना आता है, उनके मिडफील्डर्स को बॉल रिसीव करके टर्न करके आगे खेलना आता है, सही जगह पे रिसीव, सही जगह पे पास, सही टाइम पे पास. ये सब आई थिंक Bayern are in the defense and the midfield. Bayern are technically as good as how good the front three is technically. तो भाई I think that is something that is not talked about enough. I don't even know the names of the players in Bayern's defense and midfield apart from Kimmich and Jonathan Tah I think. बट भाई जो मैं देखा ना भाई they've got the ability to build from the back. और आजकल जैसे फुटबॉल खेला जा रहा है everybody tries to build from the back. I mean most teams that we see try to build from the back and these guys were able to do that against Madrid, which is very important. और भाई मतलब और मैड्रिड सेम चीज़ नहीं कर पा रही थी. पता है इफ वो एक आई थिंक हाफ टाइम में किसी का एनालिसिस आ रहा था भाई किमिक वो प्लेज इन द मिडफील्ड, डिफेंसिव मिडफील्ड. भाई वो बॉक्स के अंदर घुस के प्रेस कर रहा था मैड्रिड को एंड मैड्रिड वही दे वर नॉट एबल टू बीट देयर प्रेस, दे वर नॉट एबल टू बिल्ड फ्रॉम द बैक. तो भाई बट हाँ अगेन मैड्रिड भी उतना प्रेस नहीं करती है क्योंकि भाई ऑब्वियसली तुम्हारे फ्रंट में विनी है, एम्बापे है, तो दे आर नॉट गोइंग टू गो दैट डीप इनटू द बॉक्स एंड प्रेस एंड बर्न देयर स्टैमिना और एनीथिंग. आई डोंट नो. बट भाई एक चीज़ तो मैं नोटिस किया हूँ कि भाई यू हैव कुत्ते की तरह प्रेस करना पड़ता है तभी जाके यू आर एबल टू पुट प्रेशर ऑन द अदर टीम. PSG की भी अगर हम देख लेना भाई वो आई थिंक वो वाली रील तो सबने देखा था जहाँ पे वो डेम्बेले भाई लिटरली कुत्ते की तरह वो बॉक्स के बाहर खड़ा हुआ था, अपने शॉट्स को ऐसे उठा रहा था. ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर द गोलकीपर टू रिलीज द बॉल ताकि वो कुत्ते की तरह भाई मतलब वो ट्रेंड कुत्ते को देखे हो ना कि मतलब तुम्हारे हाथ में एक बॉल होती है और वो कुत्ता बस लबलबाता होता है कि तुम बॉल फेंको और वो जाएगा बॉल को पकड़ने. तो भाई डेम्बेले की शक्ल वैसी थी एंड आई थिंक भाई दैट इज़ भाई जब वैसा प्लेयर तुम्हारी टीम में खेल रहा हो हाउ कैन यू बी लेथार्जिक, हाउ कैन यू टेक इट ईजी. भाई यू तुम्हारे भी आग लग जाएगी भाई. यू विल ऑल्सो वॉन्ट टू पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू द गेम. एंड आई थिंक यार मैड्रिड को भी थोड़ा सा वैसा कल्चर लेके आना चाहिए भाई. आई थिंक भाई भगाओ भाई एम्बापे, विनी, इनको भगाओ भाई थोड़ा, या फिर एक कुत्ते को लेके आओ जो भागेगा इनके लिए. तो हाँ Madrid was not able to build from the back, Bayern was able to build from the back. Bayern also had their front three which is so clinical. Now if I compare Arsenal's front with Bayern's front, Bayern have got the ability to be clinical. They've got
the killer instinct. They've got men who can do the job. They've got players who, if they get even a second extra in the box, you know they'll score. क्योंकि भाई भाई डियाज did not have a good game in the second leg. वो जब 3-all चल रहा था, whatever जो भी, I think 6-4 था स्कोर. बायर्न जब स्कोर ऑल था ना, डियाज did not have a great game, but भाई उसने कट इन किया, शॉट लिया, गोल. और ओलीसे तो आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम, एंड आई थिंक वो 5-6 बार ट्राई किया था टू कट इन एंड स्कोर, एंड अल्टीमेटली ही डिड डू दैट. तो भाई यही, भाई आर्सेनल लैक्स दिस. आई हैव नेवर सीन बुकायो साका कट इन साइड एंड स्कोर. आई शिट यू नॉट कि मतलब लाइव गेम्स तो मैं नहीं देखता चलो, बट मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर फुटबॉल देखता हूँ, एंड आई कैन नॉट इवन रिकॉल वन रील दैट आई हैव सीन ऑफ बुकायो साका कटिंग इन साइड एंड एबल एंड स्कोरिंग अ गोल टॉप बिन्स. मैंने नहीं देखा भाई. एंड तुम कैसे बात कर सकते हो भाई? हाउ कैन यू टॉक अबाउट डोमिनेटिंग वर्ल्ड फुटबॉल? हाउ कैन यू टॉक अबाउट विनिंग द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग एंड बीइंग द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इफ योर विंगर्स कैन नॉट इवन कट इन साइड एंड इवन. भाई एक गोल तो याद होगा, मतलब हो सकता है ये मेरी गलती हो, मेरे को कुछ याद नहीं हो, मैं इस वीडियो के बाद देखूंगा साका ने ऐसा कुछ गोल मारा है कि नहीं. तो भाई इफ़ आई वॉज मिकेल आर्टेटा, भाई सीज़न अगर ख़त्म हो रहा है और मेरी जॉब अगर बच रही है तो मैं ट्रांसफर मार्केट में जाऊँगा और एक ढंग का क्लिनिकल एक क्लिनिकल प्लेयर तो मिनिमम है. आइडियली 2 क्लिनिकल प्लेयर्स उनको लाने चाहिए भाई. पैसे फेंको, ढंग के क्लिनिकल प्लेयर्स लेके आओ भाई, ऐसे जीतो भाई. आई वॉन्ट आर्सेनल टू विन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन टू सी आर्सेनल लिफ्ट अ चैम्पियंस लीग. अगर वो उठा रहे हैं तो भाई इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. प्रीमियर लीग में अगर उठाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. बट या बाय गुड प्लेयर्स यार. आई थिंक इफ़ यू वांट टू डोमिनेट वर्ल्ड फुटबॉल, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, तो बढ़िया प्लेयर्स लेके आओ यार. सजेशंस तो नहीं पता, इतना तो डीप नॉलेज नहीं है फुटबॉल का अभी, बट हाँ यार इतना पता है कि भाई ये योकेरेस, बुकायो साका, मार्टिनेली, एजा, माडुइके, तुम्हारा ट्रॉसार्ड, इनकी बस की बात नहीं है भाई. ये टॉप 4 तुमको ले आएंगे, सेकंड भी तुमको ले आएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग द रेस एंड कमिंग आउट एज द विक्टर, आई थिंक you need people with more balls, is the best way I will be able to put it. That is my take on Arsenal. PSG और बायर्न का गेम आई थिंक बहुत ही क्रैकर होने वाला है. आई थिंक इट्स गोइंग टू, बट उससे भी ज़्यादा पता क्या, आई हैव अ फीलिंग कि भाई द मच मोर इंटरेस्टिंग गेम इज़ गोइंग टू बी मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल. क्योंकि भाई पता नहीं, आई जस्ट गॉट अ फीलिंग बायर्न और PSG का भी गेम अच्छा हो सकता है, डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, बट पता नहीं भाई. एटलेटिको एंड आर्सेनल, वीव सीन बायर्न एंड PSG इन द पास्ट. आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक 2019 2020 में भी नेमार का बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस रहा था, बट बायर्न अल्टीमेटली वॉन 1-0. आई थिंक वो चैम्पियंस लीग फाइनल ही था आई थिंक. बट हाँ, तो हमने देखा हुआ है बायर्न PSG. Still nothing to take away from that fixture. Is going to be I hope it's going to be a cracker. But what is getting me more excited is Atletico versus Arsenal, क्योंकि भाई it's got a lot of weight on it. People know that PSG and Bayern both are great teams, and whoever wins, मतलब वहाँ पे क्या है ना, थोड़ी 50-50 वाली सीन है, तो बढ़िया है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर बायर्न हारती है तो इट्स गोइंग टू बी टॉकिंग पॉइंट, PSG हारती है तो इट्स गोइंग टू बी टॉकिंग पॉइंट. मतलब हाँ ठीक है, एंटरटेनिंग गेम हो सकता है, बट भाई एटलेटिको और आर्सेनल में ना उस फिक्सचर में थोड़ा वजन है. क्योंकि अगर आर्सेनल हारती है तो उनकी बेइज्जती बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि लीग भी वो बॉटल कर रहे हैं और चैम्पियंस लीग बॉटल करेंगे. तो मतलब भाई इट्स गोइंग टू बी सो मच एंटरटेनमेंट भाई. आर्टेटा की बेइज्जती, आर्सेनल की बेइज्जती, या फिर अगर एटलेटिको हारती है तो सिमियोनी की बेइज्जती, एटलेटिको की बेइज्जती, क्योंकि अभी वो लोग आई थिंक ये कोपा डेल रे भी हारे, फिर अभी चैम्पियंस लीग भी हार जाएंगे. तो हाँ, इट्स consequences of Atletico versus Arsenal is heavier than the consequences of PSG versus Bayern. क्योंकि बायर्न लीग जीत चुकी है, PSG भी आई थिंक अपनी लीग जीत चुकी है, तो मतलब ठीक है, उनका उतने consequences नहीं है. और PSG तो लास्ट सीज़न जीती भी थी, तो ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जीतेंगे तो मर जाएंगे.
आर्सेनल नहीं जीतेगी तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि मिकेल आर्टेटा मरवर जाएगा। तो या आई थिंक रियली एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट वीक एटलेटिको वर्सेस आर्सेनल। आई होप बोथ गेम्स आर ग्रेट, बट देखते हैं व्हाटएवर। तो यार व्हाटएवर जो भी ये देख रहा है भाई, लाइक वाइक कर दो और कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं। और मतलब मज़ा क्या ही आएगा, मैं लिटरली 15 मिनट सिर्फ फुटबॉल की बात किया हूँ और ऐसा कुछ नहीं। व्हाटएवर, whoever is watching this, if you've watched this, thank you very much. Good night.